Hello students, this is our first communication via this online digital platform in which I will be explaining to you the chapter of final accounts. So today in this video series I will be introducing the chapter of final accounts to you, and for some reason if you were not comfortable with final accounts during 11th standard, अगर आपको इतना final accounts अच्छी तरह से समझा नहीं, घबराइए मत, आज नई शुरुआत है. We will get started and I will explain to you the very basics of what is final accounts, and final accounts is prepared in how many parts. So let's get started. Final accounts is a chapter which you have learned in FYJC, your 11th standard, as well as it is a very important chapter that you will be learning in 12th standard. The concepts of trading account, profit and loss account, balance sheet, assets and liabilities are equally connected to not just one chapter of 12th standard but multiple chapters of 12th standard. So a few more things concerning final accounts. Okay, some important points that you have to remember, because your eventual HSC paper will not just be practical solutions, but it will also be objective oriented, and there are some minor points from where objectives can be picked up from this chapter. For example, final accounts is a chapter which is prepared by pretty much the entire country of India, and in India almost by every institution or organization. Like you see on your screen, a sole trader prepares final accounts. Partnership firm is something that you will be learning in different varieties during your year of SYJC. Joint stock companies, Reliance, Tata, Birlas, all of these people, different hotels, banks, insurance companies, everyone prepares final accounts. Okay, like the word suggests, final. This is something which is not prepared multiple times. Like during 11th standard, you have journal entries. They were prepared on a daily basis. Ledgers, they were prepared on a monthly basis. But final accounts is one chapter जो पूरे साल खत्म होने के बाद it's only prepared once, which is on 31st of March. In India, that is called as the financial year. Also, the intention, इतना बड़ा chapter जो है, आप पढ़ क्यों रहे हो, इतनी मेहनत आपको क्यों करनी है? सीधी सी बात है कि फाइनल अकाउंट्स का जो फायदा होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस जानना. एवरी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसका सबसे पहला एम जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मैं भला करना चाहता हूं. सबसे पहला हमको हमारी भलाई करनी है, मतलब पहला हमको हमारे प्रॉफिट कमाना है, और उसके बाद में जब आप अच्छा प्रॉफिट कमा लो तो आप डेफिनेटली सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हो. तो फाइनल अकाउंट्स एक चैप्टर है जो बिजनेसमैन को, कंपनीज को ये बताता है कि उनके बिजनेस में पिछले एक साल में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस. प्रॉफिट लॉस से आप क्या करोगे? प्रॉफिट अगर होगा तो बिजनेस को आप एक्सपांड कर सकते हो. अगर सिर्फ आप मुंबई शहर में हो तो आप अलग अलग शहरों में जा सकते हो. अगर आप सिर्फ एक सिचुएशन में, एक जगह पर हो तो आपका बिजनेस एक्सपांड हो सकता है. और दूसरी बात, अगर लॉस है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से, क्योंकि प्रॉफिट एक सेहतमंद इंसान, इट्स लाइक अ हेल्दी पर्सन. अ हेल्दी पर्सन नीड नॉट वरी अबाउट टुमारो, बट अ लॉस making business is like a weak person. It is like somebody who has a sickness. So if on time, if you are not made aware that you have a sickness, आपको कोई ना कोई बीमारी है, वो बीमारी बढ़ जाएगी, पहले से दूसरा से तीसरे स्टेज पर चली जाएगी, और जब तीसरे स्टेज पर जाएगी आप आपके बिजनेस के बारे में और दूसरी आपके हेल्थ के बारे में कुछ नहीं कर सकते. तो फाइनल अकाउंट्स एक चैप्टर है जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ बताता है आपके बिजनेस का. आगे जाते हैं. फाइनल अकाउंट्स कितने पार्ट्स में बनता है? 2 पार्ट्स में बनता है. पहला पार्ट्स आप कह सकते हो अकाउंट्स होता है. इसमें पास्ट में जो इस्तेमाल हुआ है उसको लिखा जाता है, पास्ट यूज आइटम्स.
एंड द अदर पार्ट, दूसरा हिस्सा जो है फाइनल अकाउंट्स का, वो है बैलेंस शीट। इसमें आपको फ्यूचर टेंस में जो काम आने वाला है, भविष्य काल में जो काम आने वाला है, उसकी चीजें लिखी जाती है। अच्छा, दूसरी बात, फाइनल अकाउंट्स में ज्यादातर 90% से ज्यादा खर्चे लिखे जाते हैं। अभी खर्चे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? सीधी सी बात है, आपके घर पर भी अगर आप एक महीने का थोड़ा ख्याल रखो कि एक महीने में कितने खर्चे हुए हैं, कितनी कमाइयां हुई है, आप ये नोटिस जरूर करोगे कि करीबन 20 से 30 या 40 खर्चे होते हैं। जब आप कहाँ पे खरीदारी के लिए जाते हो, शॉपिंग के लिए जाते हो, हैव अ लुक एट दैट शॉपिंग बिल, देयर विल बी मल्टीपल आइटम्स दैट आर योर एक्सपेंसेस। बट इनकम जो होता है घर का, वो एक या दो लोग का ही हो सकता है पेरेंट्स पैसे कमाते हैं, या जो एल्डर ब्रदर सिस्टर होते हैं वो इनकम आपकी फैमिली का होता है। उसी तरह बिजनेस में भी होता है। आपको ये समझना है कि इतना खर्चे बिजनेस क्यों करता है, क्योंकि जब वो खर्चा करता है तो उसको बदली में फायदा मिलता है। अ पर्सन स्पेंड्स बिकॉज इन रिटर्न ही एक्सपेक्ट्स अ बेनिफिट, और वो जो बेनिफिट होता है वो आपको क्लासिफाई करना पड़ता है। मतलब है, अगर आप 5 रुपए का कोई चीज लो तो बेनिफिट आपको 2-3 घंटे का मिलेगा, पर अगर आप 50 लाख की कोई चीज लो तो बेनिफिट आपको सालों का मिलेगा। तो ये जो बेनिफिट का मुद्दा है कि फायदा मुझे 1 साल से कम होता है या 1 साल से ज्यादा होता है, अगर आप ये बात समझ गए तो फाइनल अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत मदद होगी। थोड़े आगे जाते हैं। अकाउंट्स में क्या चीजें लिखी जाती है, बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं उदाहरण के द्वारा। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी रिटन इन अकाउंट्स and what is going to be written in the balance sheet. There are a few words on your screen which will be appearing like wages, gadi, that's our local language, that means a motor car, advertisement, which is Vigyapan, ghar, that's a building or your own house, salary, furniture, electricity, machinery. Now these are various expenses. You spend different amounts on them. Maybe you spend a little less money on electricity, but a little lot money on purchasing machinery. But everything that is on your screen basically involves you shelling out money from your pocket. आपकी जेब से इन सारी चीजों के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। अब आपको ये समझना है, जब आप खर्चा करते हो और जो फायदा आपको आता है, अगर वो फायदा 1 साल से कम के लिए आता है तो उस वर्ड को, उस शब्द को आप अकाउंट्स में लिखोगे। अगर फायदा आपको 1 साल से ज्यादा 2, 3, 10, 15, 50 साल तक आता है तो उस वर्ड को आप बैलेंस शीट में लिखोगे। एक बार एक इसको देखते हैं। वेजेस का मतलब क्या होता है? अगर आपके घर के अंदर कोई काम करता है, कोई ड्राइवर का काम करता है, कोई चपरासी का काम करता है, कोई हाउसमेट का काम करता है, तो उनको आप सैलरी में भी हर हफ्ते देते हो या हर महीना देते हो। जब आप उनको सैलरी वेजेस देते हो, तो वेजेस भरने के बाद वो आपके लिए काम सिर्फ उस महीने के लिए करेंगे, वो आपके लिए काम 2-3 साल के लिए नहीं करेंगे। मतलब जब किसी का वेज दिया जाता है तो जो आदमी को आप पेमेंट करते हो वो आपके लिए काम सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए करेगा। इसकी वजह से वेजेस अकाउंट्स में लिखा जाता है। उसके बाद गाड़ी, आपका मोटर कार जो होता है, मोटर कार अगर आप अच्छे से चलाओ, कोई दुर्घटना ना हो, कोई भी एक्सीडेंट अगर नहीं होता है मोटर कार का, तो मोटर कार आप भी चला सकते हो, मोटर कार आपके आने वाले बच्चे हैं वो भी चला सकते हैं। मतलब काफी लोग और काफी सालों तक मोटर कार चलाया जा सकता है और आप आराम से ट्रैवल उसके अंदर कर सकते हो। तो मोटर कार का फायदा आपको काफी टाइम तक, मतलब 1 साल से ज्यादा होता है। इसके लिए मोटर कार बैलेंस शीट में जाता है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आता है। जब एडवर्टाइजमेंट ऐसी चीज है जो जैसे सीजन बदलता है, जैसे ही एनवायरनमेंट बदलता है, एडवर्टाइजमेंट को भी बदलना पड़ता है। तो whenever companies make an advertisement, it is never that the advertisement is made now and it will also be used once again in the next year. Advertisements are constantly changed because the benefit of advertisement lasts only for maybe a few weeks and a few months. It's less than 1 year. Therefore, you write it in the accounts. Next, house. Very simple. The house that you are staying in.
is possible that your father or your grandfather purchased it and you are still staying in that house. Meaning to say, the benefit of that house has been received by your father as well as by you. आपको भी फायदा हुआ है, आपके पापा को भी फायदा हुआ है, और अगर वो घर अच्छे में रखा जाए तो और काफी टाइम तक आपको उसका फायदा होगा. तो घर बैलेंस शीट में जाता है. अगर कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉई को सैलरी देता है तो फिर से वो सैलरी एक ही महीने की दी जाती है, और वो आदमी जो है, वो इंसान जो है, एक ही महीने के लिए काम करेगा. अगले महीने के लिए दोबारा आपको सैलरी देनी पड़ेगी. तो सैलरी, जब आप बॉस होते हो और आप सैलरी देते हो तो फायदा 1 या 2 महीने का ही मिलेगा. 1 साल से कम मतलब अकाउंट्स में चला जाएगा. फर्नीचर, आपके घर में कैबिनेट होगा, डाइनिंग टेबल होगा, अलमारी, कबर्ड होगा, और काफी टाइम से ये फर्नीचर आपके घर पे होगा, तो फायदा इसका काफी टाइम तक होता है, 1 साल से ज्यादा. इसके लिए फर्नीचर बैलेंस शीट में चला जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने आता है, और अगर आप 2 महीने के तक बिल ना भरो तो इलेक्ट्रिसिटी का बंदा जो है वो जरूर आपके घर पे आएगा और आपका लाइन काट देगा. मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको हर महीने चाहिए, हर महीने पेमेंट करना है, तो ही आपको हर महीने उसका फायदा होगा. तो इलेक्ट्रिसिटी का फायदा एक बिल भरने पर 1 ही महीने के लिए मिलता है, तो वो चला जाएगा लेस देन 1 ईयर, मतलब अकाउंट्स में. और मशीनरी क्या होती है? मशीनरी का मतलब होता है आपके घर में मोबाइल एक तरह की मशीनरी है, रेफ्रिजरेटर मशीनरी होता है, एयर कंडीशनर अगर घर में हो वो मशीनरी होता है, वॉशिंग मशीन हो वो मशीनरी होता है. ये काफी टाइम से आप यूज कर रहे हो, मतलब इसका फायदा 1 साल से ज्यादा होता है. ये सारे जो उदाहरण, ऑल दीज एग्जांपल्स दैट आई हैव गिवन टू यू इज टू एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंस बिटवीन 1 साल से कम, what is less than 1 year and what is more than 1 year. Also generally please remember, आपको ये याद रखना है आगे जब आप आगे पढ़ाई करोगे 13, 14, 15 स्टैंडर्ड में, कि अकाउंट्स में जो लिखा जाता है, these things are called as revenue expenses and everything which is written in the balance sheet, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है जो बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं, those are called as capital expenses. I'm really hoping that you have understood the beginning of final accounts and I am also hoping, ये भी मेरी आशा है कि ये चैप्टर के आखिर तक जितने भी वीडियोस बनेंगे, आपका जो भी लेवल है अभी, अगर आप इस चैप्टर से घबराए हुए हो, you will not be worried about final accounts, but you will be as comfortable as this dude on the screen. Thanks a lot for the time that you have given me. Do stay safe, stay indoors. We will meet soon.